Okay. Good morning, everyone. This is me, Rakhi Vyas from Jadwar Group of Institutes. I would like to welcome you in this beautiful program that is Yoga Camp, Yoga with Family. Because somewhere in this pandemic and COVID situation, we were suffering from many problems. So somewhere we have to keep ourselves mentally and physically fit. So first of all, I would like to thank our Dr. Sudhakar Rao Jadwar sir, who is president of Jadwar Group of Institutes, who had been working as a dean of commerce in Savitribai Phule University and also part of Principal Forum and Nursing Forum. And even today, I would like to introduce who is going to teach us, our teachers. Only the day before yesterday, we had our Guru Purnima, and we are blessed right now that we are having two nice teacher who is going to guide us how we can keep ourselves physically fit. So let me give a brief introduction about them. Okay, our first today I am going to call him Guruji only. Dr. Brij Mohanji Daima, whose educational qualification is he has done with MCOM, SAT, NET, GDC, and a PhD. Now, designation and experience I would like to share. IQAC Coordinator, Associate Professor, and Head Department of Business, Eco Dayanand College of Commerce, Latur. If we talk about teaching experience since 16 June 2000, total 21 years of experience he is having. Now, recognized yoga teacher of Patanjali Yog Pit Haridwar since 21st of September and 2006. He also works as resource person of Securities and Exchange Board of India since August 2011. National Institute of Securities Market Academic Counselor since February 2017. Active SPSC of Swayam NPTEL Local Chapter funded by MHRD GOI since November 2017. I would like to warm welcome to our sir. Good morning, sir. Good morning. Even he had conducted so many yoga training program like National Yoga Training Program, Assistant Yoga Teacher Training Camp, National Yoga Teacher Training Camp by Bharat Swabhiman, Patanjali Yog Pit Haridwar. He is trained and certified yoga instructor of NSQF, trained and certified yoga protocol instructor. And yes, in this his journey, his better half, Mrs. Dr. Daima Sarika Brijmohan, she is always with him. Her qualification is MCOM, MPhil, PhD. She has done with her designation Assistant Professor, Dayanand College of Commerce, Latur. Again, she is resource person of SEBI, Securities and Exchange Board of India, NICM Academics Counselor since February 2017, CMA Foundation Course Coordinator since July 2018. Same with the sir, she has conducted so many training programs, and we are blessed that today we are having this much experienced person to tell us how to keep ourselves mentally and physically fit. Thank you so much, sir, for joining. And yes, now we can start with our yoga session. ओके, हरिओम। हम लोग जब योगाभ्यास करते हैं तो शुरुआत ओमकार से होती है और प्रार्थना से होती है। तो हम लोग सबसे पहले ओमकार और प्रार्थना लेंगे और फिर अपने योगाभ्यास को प्रारंभ करेंगे। तो आइए आंखें बंद कर
आप आराम से बैठ जाइए। एक आसन, मैट जो भी आपने लिया है उसके ऊपर आराम से बैठ जाना है। पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, सीधा बैठ जाना है। कोई भी तनाव आपके शरीर पर नहीं रखना है। और हम लोग लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओमकार के पश्चात प्रार्थना लेंगे। संगच्छध्वं सर्वदत्वं संगो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते संज्ञाना उपासते। इसका अर्थ है, आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। तो आइए पहले सुनेंगे आज का श्लोक। हरिओम। जाधवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पुणे, इनकी तरफ से आयोजित इस 10 दिवसीय योग शिविर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इन 10 दिनों में हम योग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, योग के अलग अलग विधियां, प्रकार क्या है, उसके लाभ क्या है, उसमें प्रतिबंध क्या है, योग से संबंधित स्थूल क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, अष्टांग योग, इन विविध विषयों के बारे में हम इन आने वाले 10 दिनों में जानकारी लेने वाले हैं। उसका सैद्धांतिक पक्ष एवं प्रात्यक्षिक पक्ष भी हम देखने वाले हैं। आज के इस योग शिविर की शुरुआत हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के साथ कर रहे हैं। उसके पूर्व मैं जाधवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस योग शिविर का आयोजन किया। इसमें संस्था के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुधाकर राव जी जाधवर सर, उनके साथ एडवोकेट श्री शार्दुल जी जाधवर सर, जिनके पहल के द्वारा इस योग शिविर का आयोजन किया गया है, वह प्राचार्य राखी जी व्यास, इन सभी का मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके प्रयत्न के वजह से इस योग शिविर का आयोजन हो रहा है। संस्था से संबंधित सभी हित संबंधी लाभार्थियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इस श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से हम इस योग शिविर की शुरुआत कर रहे हैं। सभी साधक मेरे साथ यही श्लोक पठन करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगो वस्तु अकर्मणि। अब हमारे साथ इसी श्लोक को आप सभी दोहराने का प्रयत्न करेंगे, जितना संभव हो सके उतना दोहराएंगे सभी एक साथ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। योगेश्वर श्री कृष्ण अपने शिष्योत्तम अर्जुन से
कर्म फल का सिद्धांत बता रहे हैं, जिन्होंने वे विशद कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य कर्म भली भांति करो। कर्म करना यह तुम्हारा कर्तव्य है और फल देना ईश्वर का कर्तव्य है। इसीलिए आपका जो भी कर्तव्य है, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का कर्तव्य है विद्या का अर्जन करना, भली भांति पढ़ना। शिक्षक है तो उसका कर्तव्य है कि अच्छी भांति से विद्यार्थियों को विद्यार्जन करने के लिए मदद करना, उनकी समस्याएं दूर करना, उनकी परीक्षा लेना। हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य भली भांति से कर्तव्य भाव से पूर्ण करे और फल की चिंता न करने, क्योंकि फल देना यह ईश्वर का कर्म है और ईश्वर अपना कर्म भली भांति निभाएगा ही। तो ईश्वर पर भली भांति श्रद्धा करते हुए आपको अपने जीवन के सभी कर्तव्य निभाना है। आप अगर ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं, तो परमात्मा परमेश्वर का अंश हमारे माता पिता एवं गुरुजनों में रखा गया हुआ है। जैसे कि हमने कल व्यास पूर्णिमा का उत्सव मनाया, तो उसी तरह से आप प्रत्येक प्राणी मात्र में ईश्वर का अंश देखकर उनकी आज्ञा का पालन करें। उनके गाइडेंस में आप अलग अलग चीजें सीखते रहे, दोहराते रहिए। तो आइए शुरू करेंगे आज का योगाभ्यास सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा। तो आइए सबसे पहले अपने पैरों को आगे की ओर लंबा कर लीजिए। हम लोग सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं, जिसमें पहले हमारे शरीर में सुबह सुबह जो अकड़न आती है उसे शिथिल करने की ये क्रिया है। हाथों की पोजीशन आपके कंधों के समांतर, आपको हाथ पीछे रख लेना है दंडासन की स्थिति में। पैरों की उंगलियां पंजों के साथ आपको आगे पीछे करनी है। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। हर एक सूक्ष्म क्रिया आपको 5 से 7 बार आराम से कर लेनी है। धीरे धीरे पंजे के साथ अपनी उंगलियों को भी आगे पीछे करेंगे। पहले हमने सिर्फ उंगलियों को हिलाया, अब पंजे के साथ हम लोग उंगली को हिला रहे हैं। आइए धीरे धीरे एड़ी के साथ पूरे पंजे को आगे और पीछे की ओर स्ट्रेच करते हैं। धीरे धीरे आगे और पीछे की ओर। जब हम लोग ये सूक्ष्म क्रिया करते हैं तो पैरों की मांसपेशियों में हलचल होती है, उसमें खिंचाव सा आता है, जिससे रक्त का संचार शरीर में अच्छे से होता है, पैरों में अच्छे से होता है, पैर मजबूत होते हैं। अब इसी को सर्कल बना लीजिए। धीरे धीरे अपने पांव का, एड़ियों से जो पांव था उसका सर्कल बनाना है। क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। धीमे धीमे हमें अब घुटनों को थोड़ा सा मोमेंट देना है। घुटने उठाकर धीरे धीरे हमें ऊपर नीचे करने हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब धीरे से इस तरह अपने पैरों को एक दूसरे पर पीट लीजिए। हल्के से करना है ये कोशिश, जिससे हमारे पैर को मजबूत होना है। अब इसी में कर लेते हैं चक्की आसन। पैर को ऐसा ही लंबा रहना दीजिए। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके मुट्ठी को बंद करना है। पैर के अंगूठे से पीछे की ओर हाथों को इस तरह लेकर जाना है। जितना आप पीछे लेके जाओगे उतना अच्छा है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स इसे कर लेंगे, जिससे हमारी कमर मजबूत होगी, हाथों की और पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होगी। अपोजिट साइड से कर लीजिए। पहले जिस साइड से किया था उसके अपोजिट साइड करना है। बहुत अच्छे। विश्राम। अब आइए करेंगे हम लोग शीत कोणासन। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। 1 फीट का डिस्टेंस पैरों में होगा। अब लेफ्ट हाथ के उंगलियों को राइट पांव के अंगूठे को स्पर्श करना है और राइट हाथ पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। इस स्थिति में आपको आना है। अब अपोजिट हाथ को करना है। अपोजिट हाथ अपोजिट पांव के पास। इस स्थिति को आपको
4 से 5 बार आराम से कर लेना है। जो हाथ पीछे जाएगा उसी साइड में आपको गर्दन को पीछे की ओर लेना है। बहुत अच्छे। अब कुछ चीजें आपको सुनते सुनते हमारे साथ मूवमेंट भी करनी है और सुनना भी है। आइए फिर से अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप आसन और योगाभ्यास करते हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग अलग अलग पोस्चर में कैसे बैठ सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। अब जैसे आप लोग अभी बैठे हो, जैसे खाना खाने बैठते हो मांडी डालकर, अलगती पालगती डालकर, उस तरह अगर हम लोग दोनों पैर की पंजे हमारे पैरों के नीचे, जंघाओं के नीचे अगर लेकर इस तरह बैठ जाए और हाथ की मुद्रा पहली तर्जनी उंगली और अंगूठे की टोक, ये दोनों को अगर हम दबाकर इस तरह अपने घुटनों पर रख ले तो इस मुद्रा को कहा जाता है सुखासन, और ध्यान मुद्रा में सुखासन इसे कहा जाता है। तो जब आप योगाभ्यास प्राणायाम पर्टिकुलरली करोगे तब आपको इस स्थिति को धारण करना सहज हो सकता है, जिसमें शरीर में कोई तनाव नहीं आएगा। अब दूसरी स्थिति की ओर मुड़ते हैं। ये पहली स्थिति जिसमें हम सिर्फ अलगती पालगती जैसे भारतीय बैठक में खाना खाने बैठते हैं उस पोस्चर में बैठेंगे, तो इसे कहा जाता है सुखासन की स्थिति। अब हमें देखना है दूसरा आसन जिसे कहा जाता है सिद्धासन या पद्मासन। तो हमें अर्ध पद्मासन, तो हम लोग देखते हैं एक पैर को मैंने सिर्फ साइड में बाहर निकाला और उस पैर को अपनी जंघा के ऊपर रख दिया, अपोजिट वाली जंघा के ऊपर रख दिया। मैंने राइट पाव को साइड में लिया और लेफ्ट जंघा के ऊपर पेट के पास अपनी एड़ी आ गई। इस तरह से मैंने अपने पैर को फोल्ड कर लिया, तो इस स्थिति को कहा जाता है अर्ध पद्मासन या सिद्धासन। इसके पश्चात यह है ध्यान मुद्रा में अर्ध पद्मासन, तो हम इसमें भी बैठ सकते हैं। उसके बाद में थर्ड आसन हम लोग देखेंगे जिसे पद्मासन कहा जाता है। तो दूसरा पंजा भी हमें नीचे से निकालना है और अपने पैरों के ऊपर इस तरह से जंघा के ऊपर रख देना है। ये धीरे धीरे दोनों पंजे आपके दोनों जंघाओं के ऊपर है। पंजा आकाश की दिशा में, एड़िया पेट के समीप एक दूसरे को चिपकी हुई है, तो इस स्थिति को कहा जाता है पद्मासन की स्थिति। हर स्थिति में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की कोशिश रखनी है। संभवतः आप गर्दन को भी सामने रखिए, इधर उधर कम देखिए, ताकि आप अच्छे से अपना योगाभ्यास कर सके और आपके पीठ कमर में जो दर्द होता है ऑनलाइन सेशन दिन भर कर करके वो कम हो जाता है। तो ये है पद्मासन की स्थिति। इसके पश्चात एक आसन होता है जिसे वज्रासन कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं वज्रासन कैसे करना है। पहले पैरों को इस तरह लंबा कर लीजिए आराम से। अब लेफ्ट पांव को घुटनों से मोड़ेंगे और अपने कुल्ले के पास यानी अपने नितंब के पास में आपको बाहर की ओर इस पंजे को रख लेना है। सेम दूसरा पांव भी इसी तरह से मोड़ेंगे। आप पोस्चर देखते देखते करिए ताकि आपको बराबर समझ में आए। अभी आपको आगे से ये पोस्चर दिखाएंगे। तो अभी आपको दिखा रहे हैं कि कैसी पोस्चर आपकी पीछे होनी चाहिए। अब पैर के अंगूठे, दोनों पैर के अंगूठे इस तरह एक दूसरे को चिपके होने चाहिए। एड़िया जो है वो बाहर की ओर, नितंब के बाहर की ओर होगी। एक बार उठो, एक बार देख लीजिए कि एड़ियों के बीच में जो गैप है उसमें आपको आराम से बैठना है। तो इस स्थिति को कहा जाता है वज्रासन। जंघाओं पर अपने हाथ रखकर हम लोग सीधी गर्दन करके सामने की ओर देखते हुए बैठते हैं। तो ये वज्रासन की स्थिति है। खाना खाने के तुरंत पश्चात अगर हम लोग वज्रासन में बैठे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो ये है वज्रासन। तो इसमें से जो आपको सुखद स्थिति रखे लगे उस स्थिति में आपको आराम से बैठ जाना है। तो हमने सिर्फ प्रायोगिक रूप पर 4 आसन आपको दिखाए हैं, जिसमें सुखासन,
अर्ध पद्मासन, पद्मासन और वज्रासन, इन चारों में से जो आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, उस स्थिति में आप बैठकर योगाभ्यास कर सकते हो। तो आइए अब हम लोग वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। वापस अब आपको जिस स्थिति में सुखद लगे उस स्थिति में बैठना है और आगे जो सूक्ष्म व्यायाम है उसकी ओर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले होगा ग्रीवा का संचालन, गर्दन का संचलन। तो गर्दन की पोजीशन, आपको गर्दन की जो मूवमेंट करनी है, ध्यान रखिए कि हाथ पैर आप थोड़ा स्पीड में घुमाएं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्दन अगर आप ज्यादा स्पीड में घुमाओगे तो चक्कर आती है, इसलिए उसे मध्यम या धीमी गति से हम लोग गर्दन का एक्सरसाइज करते हैं। तो एक एक एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग गर्दन की। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो आपको अच्छा लगे उसमें बैठ जाइए। अब धीरे धीरे सिर्फ सांस को भरते हुए हमारी गर्दन को हम लोग पीछे की ओर पीठ पे स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आपको नजर उठानी है, गर्दन पीठ पे लगानी है, फिर वापस सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे आपको सामान्य स्थिति में गर्दन लाना है। धीरे धीरे करना है, सामने की ओर धीरे धीरे देखेंगे। अब धीरे धीरे इसी स्थिति में सांस छोड़ते हुए आगे की ओर चेहरे को झुकाना है और थोड़ी को आपके कंठकूप को लगाना है। यहाँ पे जो गले के पास होल होता है ना छोटा सा, वहां पे स्पर्श कीजिए। फिर वापस सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे सीधा करेंगे। धीमे धीमे आप मेरे साथ करते रहिए, धीमे धीमे। अब पीठ की ओर लेकर जाएंगे, उठाकर गर्दन को आराम से पीठ पे गर्दन का स्पर्श होगा। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए हम लोग सामान्य स्थिति में अपने गर्दन को ला लेते हैं। तो ये था पहला एक्सरसाइज जिसे आगे और पीछे गर्दन को झुकाने का कहा जाता है। अब हम लोग लेफ्ट और राइट साइड में हमारी गर्दन को दो दो बार टर्न करेंगे। तो पहले देख लीजिए और फिर मेरे साथ करते रहिए। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में गर्दन को सिर्फ घुमाना है, शरीर सामने होगा, सिर्फ गर्दन हमने लेफ्ट साइड में टर्न करना है। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में जब आपकी थोड़ी कंधों के समांतर आ जाए कुछ क्षणों के लिए होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे वापस सामने की ओर गर्दन को टर्न करना है। अब धीमे धीमे राइट साइड में गर्दन को टर्न करेंगे। बहुत अच्छे। फिर धीरे धीरे वापस सामने की ओर आएंगे। धीमे धीमे ही आना है, इसको अधिक स्पीड से नहीं करते। अब दूसरा राउंड इसी का लगाएंगे। लेफ्ट साइड में गर्दन को धीमे धीमे लेके चलिए, होल्डिंग। धीमे धीमे वापस सामने की ओर लाएंगे। धीमे धीमे राइट साइड में टर्न। गर्दन का टर्न करना है सिर्फ, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। धीमे धीमे वापस सामान्य स्थिति में गर्दन को सीधा ला लेते हैं। ये था दूसरे नंबर का एक्सरसाइज। अब देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज गर्दन का, जिसमें आपको सिर्फ कान को, यानी गर्दन झुकाते समय कान अपने कंधों के समीप लेकर जाने की कोशिश करना है। पहले इस तरह से लेफ्ट साइड में, फिर धीरे धीरे सीधा करना है, फिर वापस राइट साइड में। बहुत अच्छे। इससे आपके गर्दन में तकलीफ नहीं होगी। जब भी आप ज्यादा समय तक ऑनलाइन क्लास करोगे तो आपकी गर्दन अच्छी होगी। वापस सीधा कर लीजिए। लेफ्ट साइड में एक बार कान को टच स्पर्श करेंगे, फिर धीरे धीरे सीधा करेंगे और राइट साइड में स्पर्श करेंगे, फिर धीरे धीरे सीधा कर लिया। अब धीरे से आप मेरे साथ सर्कल बनाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखिए। गर्दन का सर्कल जब हमें बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोग अपनी थोड़ी को कंठकूप को लगाएंगे। आप मेरा पोस्चर पहले देखिए, मैं बताते बताते कर रही हूँ और बाद में मेरे साथ आपको 2 बार इसे करना है, ठीक है? तो पहले एक बार देखेंगे और 2 बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले
थोड़ी को हमने इस तरह कंठकूप को लगा लिया, यानी गले के पास के होल को चिपका लिया। अब धीरे धीरे सांस को भरते हुए क्लॉकवाइज, सांस को भरते हुए हम गर्दन को धीरे धीरे कंधों के साइड से लेकर पीछे की ओर लेकर जाते हैं। फिर जब हमारी पीठ का गर्दन को स्पर्श हो जाए, उसके पश्चात सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस गर्दन को लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए आराम से वापस थोड़ी को कंठकूप को लगाना है। तो चलिए अब आप मेरे साथ क्लॉकवाइज 2 बार और एंटी क्लॉकवाइज 2 बार करेंगे। तो आइए धीमे धीमे करते हैं। पहले थोड़ी कंठकूप को लगाते हैं, सांस भरते हुए गर्दन को गोल घुमाते हुए पीछे की ओर लेकर जाना है। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे आगे की ओर गर्दन को लाकर थोड़ी कंठकूप को स्पर्श करानी है। ये मध्यम गति से धीमी गति से करना है। फिर से एक बार यही राउंड लीजिए। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर। बहुत अच्छे। अब अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज करना है। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर लेकर चलिए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आइए। फिर से एक बार सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आना है। थोड़ी को कंठकूप को स्पर्श कराइए और सामान्य को ला लीजिए। सीधा देखना है। तो इसे गर्दन की एक्सरसाइज कहा जाता है। अब इसके पश्चात वापस गर्दन का एक एक्सरसाइज है, जिसमें आपको अपनी हथेली, अब जब आपका सर दर्द होता है तो आप क्या करते हो, यहाँ कान के पास थोड़ा सा जो कपाल होता है उसको साइड में यहाँ पे दबाते हो ना, तो वैसे वहीं पे एक साइड में एक हथेली लीजिए, लेफ्ट साइड की हथेली पकड़िए, सीधा करके हथेली का जो पोर्शन है उसे कान के साइड में, ऊपर के साइड में आपको हल्के से रखना है। अब सांस भरते हुए हाथ को सर की ओर दबाना है, सर को हाथ की ओर पुश करना है। सांस भर के इस तरह से किया, फिर सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ देना है हाथ को। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए हथेली को सर पे दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ देंगे। अब दूसरी साइड से करेंगे। चलिए राइट साइड को उठाइए, हथेली को राइट साइड से सांस भरते हुए हथेली को सर पे दबाना है, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ देना है। फिर वापस सांस भरेंगे, फिर से सांस धीरे धीरे छोड़ के हाथों को ढीला छोड़ देंगे। अब थर्ड एक्सरसाइज इसमें देखते हैं। हाथों को सामने की ओर लीजिए। चलिए हाथों को सामने की ओर लेकर उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। उंगलियों का इंटरलॉक करके जहां आपकी उंगलियां इंटरलॉक हुई है वो पॉइंट आपको आपके कपाल पर, यानी सामने जहां आप बिंदी लगाते हो ना, वहां पे आराम से रखना है। टीका जहां लगाया जाता है वहां लगाएंगे। अब हाथ को सांस भरते हुए पीछे और गर्दन को आगे खींचना है। फिर सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए दोनों को। फिर सांस भरते हुए गर्दन को आगे खींचिए, सांस छोड़ते हुए वापस ढीला छोड़ दीजिए। अब यही हथेली हम जहां तकिया लगाते हैं पीछे सर के, वहां रख लेनी है। जहां तकिया लगाकर सोते हैं वहां पर आराम से इस हथेली को रखते हैं। धीमे धीमे हाथ को आगे खींचना है सांस भरते हुए, फिर ढीला छोड़ देना है। नेक्स्ट वापस एक बार इसे रिवाइज करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को आगे की ओर खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस से ठीक हाथ को करके नीचे ले लेते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे अगले आसनों की ओर आते हैं। तो आइए खड़े होकर कुछ आसन कर लेते हैं बच्चों। चलिए अपने जगह पर खड़े हो जाइए। सावधान की स्थिति में आपको खड़े होना है। अब धीरे धीरे सुनते सुनते आपको हमारे साथ साथ भी करना है। तो चलिए पहले दोनों हाथों को सामने इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए। अब सांस भरते हुए
हाथ को शीश के ऊपर लेकर जाना है और पैरों के पंजे पर धीरे से खड़े होना है। इसे ताड़ासन कहा जाता है। इससे हाइट बढ़ती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और हमारी बुद्धि शार्प होती है। जितना आपसे बन पाए इस स्थिति में होल्ड कीजिए ताड़ासन। अभी घूमना नहीं है, घूमने वाला आसन बाद में करना, घर में घूमते घूमते दिन भर। अभी हमें स्थिर होना है कुछ क्षणों के लिए। बहुत अच्छे। धीरे से वापस पैरों को जमीन पर टिकाइए और हाथ को उसी स्थिति में रहने दीजिए, थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। वापस एक बार इसी को दोहराते हैं। धीरे से सावधान की स्थिति में सांस भरते हुए पंजे पर खड़े हो जाइए। होल्ड कीजिए। 5 से 10 सेकंड तक होल्डिंग इसमें कम से कम करना है। 1-1 मिनट तक भी होल्डिंग किया जाता है। हाइट बढ़ाने के लिए, मांसपेशी को मजबूत करने के लिए ये लाभदायी आसन है। आइए धीरे से पैर को जमीन पर टिकाते हैं। अब इसी में कर लेते हैं तिर्यक ताड़ासन। पैर में 1 फीट का डिस्टेंस कर लीजिए। हाथ हमने ऊपर ही रखे हैं। अब धीमे धीमे आपको लेफ्ट साइड में अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाना है, घुटने मोड़ना नहीं है। इस तरह से झुकाएंगे, फिर होल्डिंग, कुछ समय होल्ड करते हैं, फिर वापस धीरे धीरे हाथ को वापस ऊपर की ओर लेकर आएंगे और राइट साइड में हाथों को झुकाएंगे, शरीर को झुकाएंगे। तो इसे कहा जाता है तिर्यक ताड़ासन। करते करते आप देखते भी रहिए और करते भी रहिए। धीरे धीरे हमने किया तिर्यक ताड़ासन। बहुत अच्छे। अब हाथों को नीचे ले लेते हैं। अब हम लोग करेंगे वृक्षासन। तो अब पैरों को फांस में समीप जोड़ लीजिए। अब धीरे से अपना लेफ्ट पांव आपको हाथ में उठाना है, इस तरह से देखते देखते उठाइए और जंघा के ऊपर आपको इस तरह से पांव को रख देना है। हाथ कंधों के समांतर साइड में फैलाना है। जब कंधों के समांतर हाथ आ जाए तो हथेली को आकाश की ओर टर्न करेंगे और धीमे धीमे ऊपर जाकर हाथ को जोड़ना है। इस स्थिति में आपको कोशिश करनी है खड़े होने की। अब नया नया अगर आपका बैलेंस ना आए तो आप किसी का सहारा ले लीजिए, दीवार का सहारा ले लीजिए और आराम से जितना आपसे बन पाए उतना आप रुकने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे। दीवार का सहारा लेकर भी आप शुरुआत में कर सकते हो। फिर धीरे धीरे वापस हाथ को साइड में फैलाते हुए लाएंगे। कंधों के समांतर आने के पश्चात हथेली को भूमि की ओर करना है, हाथों को नीचे लेना है, पांव को भी भूमि पर टिका देना है। अब चलिए मेरे साथ राइट पांव से करिए। धीरे से राइट पांव को उठाइए, पंजा जंघाओं के ऊपर आराम से अंदर की साइड में रखना है। फिर से हाथों को साइड से फैलाते हुए कंधों के समांतर आने के पश्चात हथेली आकाश की ओर टर्न, ऊपर की ओर ले जाकर हाथ जोड़ने हैं। इस स्थिति को वृक्षासन की स्थिति कही जाती है, जो कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बच्चों के हाइट के लिए भी ये बहुत ही लाभदायी है। धीरे धीरे जितना आपसे बन पाए होल्ड कीजिए। अब आराम से हाथों को नीचे लेंगे साइड की तरफ से, हथेली टर्न भूमि की ओर, हाथ नीचे और अब आराम से पांव को भी नीचे टिका देंगे। तो इसे कहा जाता है, हम लोग कर रहे थे वृक्षासन। अब हम लोग कमर का और एक एक्सरसाइज करेंगे। चलिए अपने दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए। पैरों में 1-2 इंच का डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेना है। सावधान की स्थिति में थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर अब गोल गोल अपनी कमर को घुमाना है, क्लॉकवाइज 5 बार घुमा लीजिए। गोल गोल, जैसे मम्मी घर में जलेबी बनाती है। अब आराम से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा भी घुमाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कठपुतली का डांस आप लोग आराम से घर में ही कर लो। विश्राम। अब इसके पश्चात हम लोग करेंगे घुटनों का एक्सरसाइज। अपने हाथ दोनों घुटनों के ऊपर आराम से रखना है हल्के से और दोनों घुटने अपोजिट साइड में इस तरह से घुमाने हैं आराम से।
बाहर की ओर दोनों घुटने 5 बार इस तरह से घुमाइए क्लॉकवाइज। बहुत अच्छे। अब अंदर से बाहर की ओर जाना है, फिर से अपोजिट। एक बार घुटना क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। तो 5-5 बार आपको ऐसे हम लोग घुमाएंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा पाँव को पास में लेते हैं, दोनों घुटने पर एक साथ हाथ लगाकर दोनों घुटने एक साथ क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार एक साथ घुमाने। पहले हमने सिंगल सिंगल अलग अलग दिशा में घुमाया था, अब दोनों एक साथ घुमाने हैं। बहुत अच्छे। अब अपोजिट साइड से 5-5 बार हर एक सूक्ष्म क्रिया कम से कम की जाती है। तो आइए अब हम लोग करेंगे, उसके पश्चात खड़े होकर त्रिकोणासन। पैरों में 1-2 फीट का डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। अब धीरे से ध्यान से सुनिए और फिर कीजिए। त्रिकोणासन में अगर हमें लेफ्ट साइड में शरीर को झुकाना है तो पहले लेफ्ट साइड का पंजा हमें टर्न करना है। लेफ्ट साइड में पैर की उंगलियां लेफ्ट साइड की इस दिशा में चली गई। राइट वाला पांव सीधा होगा आपके सामने, मेरा राइट वाला पांव सीधा है, लेफ्ट वाला पंजा टर्न किया है नीचे से। अब लेफ्ट हथेली मैंने इस जंघा पर रखी है आराम से, राइट हथेली को ऊपर की ओर उठाया, लेफ्ट हथेली को धीरे धीरे, जैसे हम लोग स्लीपिंग करते हैं, घसरगुंडी खेलते हैं, उस तरह आपको आराम से स्लाइड की भांति नीचे हाथ को लेकर जाना है, गर्दन को ऊपर की ओर टर्न करना है, इस स्थिति में रुकना है। इसे कहा जाता है त्रिकोणासन। फिर वापस धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर लाना है। अब हाथ सीधे हो गए तो पैर को भी सीधा कर लीजिए। अब राइट वाले पंजे को टर्न करेंगे और राइट वाले साइड में शरीर को इस तरह से झुकाएंगे आराम से। इस स्थिति में रुके तो ये कहा जाता है त्रिकोणासन। हम अभी आपको धीमी धीमी गति से दिखा रहे हैं, ऊपर की ओर आएंगे धीरे धीरे। जब आप यॉगिक जॉगिंग करेंगे तो इसी को फास्ट भी किया जाता है। तो फिर से एक बार दोहराएंगे। फीट कोणासन, लेफ्ट साइड में पंजे को टर्न किया, लेफ्ट हथेली को जंघा से नीचे धीरे धीरे लेकर जाएंगे और राइट साइड का हाथ आकाश की तरफ, नजर आकाश की ओर। धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे। अब राइट साइड वाला पंजा टर्न करेंगे, धीरे धीरे वापस राइट वाला हाथ नीचे की ओर, लेफ्ट वाला हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर की ओर आराम से। फिर वापस पूर्व स्थिति में आएंगे। तो इसे कहा जाता है त्रिकोणासन। अब आइए करते हैं कोणासन। दोनों पैर के पंजे सामने की दिशा में होंगे। अब लेफ्ट वाला हाथ राइट वाले पैर के घुटने अंगूठे को स्पर्श करेगा और राइट वाला हाथ ऊपर की ओर होगा। जैसे हमने बैठकर किया था उस तरह अपोजिट हाथ को अपोजिट पांव की ओर झुकाना है। तो पहले देख लीजिए, लेफ्ट हाथ को झुकाया, राइट अंगूठे को स्पर्श किया, घुटने मोड़ना नहीं है, गर्दन ऊपर की ओर, राइट वाला हाथ ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में सामान्य आएंगे, सीधे हो जाएंगे और राइट हाथ को झुकाएंगे, लेफ्ट हाथ आकाश की ओर। राइट वाले हाथ की उंगलियों से लेफ्ट वाला अंगूठा स्पर्श किया पैरों का, वापस सीधा हो जाएंगे। हम लोग अभी आपको बहुत धीमी गति से दिखा रहे हैं, अब इसी को वापस रिवाइज करेंगे। ऊपर आएंगे। अब थोड़ा सा स्पीड में इसे ले लेते हैं। चलिए स्पीड से थोड़ा सा लीजिए। सिर्फ ध्यान रखो हाथ का कि कौन सा हाथ कहाँ आएगा। तो इसे कहा जाएगा कोणासन। इससे आपके कमर और पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है। विश्राम। अब ले लेते हैं यौगिक प्राणायाम करेंगे। आइए आराम से बैठ जाएंगे।
जब भी हमें प्राणायाम करना होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो स्थिति आपको अच्छी लगे उसमें आपको आराम से बैठना है। तो सर बैठे हैं सिद्धासन में, मैं बैठी हूँ सुखासन में, और गोरज और हार्दिक पद्मासन में है। तो हम अलग अलग पोस्चर आपको जानबूझकर दिखा रहे हैं ताकि आपको जो अच्छा लगे वो आप धारण कर लीजिए। अब हाथों की स्थिति को ध्यान रखिए, हाथ कोहनी से मोड़कर भी आप जंघाओं के ऊपर इस तरह से रखे तो भी अच्छा ही है। कोई लोग इस तरह से हाथ रखते हैं तो इतना टाइट करोगे तो कंधों में किसी के पेन हो सकता है, इसलिए आराम से हाथ इस तरह से फोल्ड करके हम लोग आराम से रखेंगे। पहली फिंगर और अंगूठा, ये दोनों को टोप जो है उसे हम लोग दबाते हैं, उसकी टॉप साइड को हल्के से दबाना है, बाकी 3 उंगलियां आपको सीधी रखनी है। अब ओमकार यानी उद्गीत कैसे किया जाता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कभी ओमकार करो तो साइंटिफिक ओमकार आपको मैं दिखा रही हूँ, जिसमें आपको पहले कैसे उच्चारण करना है ये दिखा दूं। पहले अ इस शब्द का उच्चारण होता है, फिर उ इस शब्द का उच्चारण होता है जिसमें ओठों का शेप ओ जैसा होता है, और फिर म का उच्चारण करते समय आपके ओठ बंद होते हैं, मन में हम म का उच्चारण करते हैं। तो हम लोग एक बार आपको दिखाते हैं, उसके पश्चात आप हमारे साथ ओमकार एक बार करेंगे। तो पहले आराम से बैठ गए, लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब इस तरह आपको हमारे साथ एक बार उच्चारण करना है ओमकार का। तो आइए, लंबा गहरा सांस भरिए। तो ये किस तरह जब आप इस तरह से ओमकार करते हो तो आप महसूस करिए कि आपकी नाभि से ऊपर वाले सारे पोर्शन में कंपन, वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी होती है, जो हमारे मांसपेशियों के लिए अच्छी होती है। उससे बहुत सारे रोगों से हमें छुटकारा मिल जाता है, इसलिए ओम का उच्चारण ऐसे लंबा करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग करते हैं प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या किया जाता है, हम जिस स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में आराम से बैठेंगे। अब सिर्फ हमें नाक से ओठ को बंद रखना है, नाक से हवा को अंदर छाती तक भरना है, और धीरे धीरे फिर छाती से ऊपर ही नाक को हवा से नाक से ही हवा को बाहर निकालना है। यानी लंबा गहरा सांस धीमे धीमे आपको अंदर भरना है और धीमे धीमे बाहर निकालना है। इस स्थिति को भस्त्रिका कहा जाता है। सिर्फ नाक से सांस को लेना और नाक से छोड़ना। जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं, ये लोग भस्त्रिका कर रहे हैं कंटिन्यू, तो हम लोग जब नाक से सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो हवा जाती है वो फिल्टर होकर जाती है, इसलिए नाक से सांस लेना फायदेमंद होता है। तो धीमे धीमे आइए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। धीमे धीमे नाक से सांस को भरेंगे, ओठ बंद रखने हैं, फिर धीरे धीरे जब आप सांस भरोगे तो छाती ऊपर की ओर खुलती है, जैसे गुब्बारे में आपकी हवा भरते हो ना आप मुंह से, तो गुब्बारा फूल जाता है, वैसे छाती फूलती है। और धीरे धीरे फिर जब आप हवा छोड़ते हो तो छाती अंदर की ओर जाती है। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को लंबा गहरा भरेंगे और लंबी सांस नाक से छोड़ेंगे। जब हम प्राणायाम करते हैं तो बोलते नहीं है, अभी आपको सिखाने के लिए मैं अकेली बोल रही हूँ, बाकी सब लोग आराम से भस्त्रिका कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा 5 बार आप लंबा गहरा सांस भरिए और 5 बार लंबा लंबा छोड़िए। सिर्फ नाक से लीजिए और नाक से छोड़िए। चलिए,
तो हमने सिर्फ अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 5 बार लंबा सांस भरा है और लंबा छोड़ा है। अब हम लोग दूसरे प्राणायाम की ओर आएंगे, जिसे कहा जाता है कपालभाति। तो कपालभाति में हमें क्या क्रिया करनी होती है? तो पहले हम लोग सांस को नाक से बाहर झटके से निकालते हैं। पहले भर लीजिए, फिर पूरी सांस को झटके से नाक से बाहर निकालना है और पेट को अंदर की ओर पुश करना है। ये लोग कपालभाति आपको करके दिखा रहे हैं। मैं थोड़ा कैमरा आपको क्लोज करके दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कपालभाति में हमें क्या करना है? अब हम आपको समझ में अगर नहीं आया तो ये लोग करते रहेंगे, मैं आपको दूसरी टेक्निक से भी ये दिखा दूं कि कैसे करना है। तो एक हाथ को इस तरह पेट पर रख लीजिए, दूसरे हाथ को नासिका से थोड़े से डिस्टेंस पर रख लीजिए। चलिए, अब नाक से हवा झटके से, जैसे सर्दी होने के बाद हम नाक साफ करने के लिए हवा छोड़ते हैं ना, उस तरह हवा छोड़िए और पेट को अंदर दबाइए। जैसे हवा बाहर आती है पेट को अंदर दबाना है। नाक पे उंगली नहीं रखना है, धीमे धीमे सिर्फ हमारी नाक से जो हवा आती है वो हथेली को स्पर्श करे, इस तरह से आपको रख लेना है। मैं थोड़ा और क्लोज होती हूँ ताकि आप और अच्छे से देख पाए। ठीक है, अब मेरे पाँव नहीं दिखेंगे लेकिन आपको बराबर पोस्चर दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए, एक हाथ मैंने अपने पेट पर रखा, दूसरा हाथ चेहरे से थोड़े से डिस्टेंस पर, नाक से अंतर पर रखना है। अब हवा को छोड़ेंगे और पेट को अंदर दबाना है। जैसे आप हवा बाहर निकालते हो, पेट को अंदर दबाइए। स्वरा बहुत अच्छे से कर रही हो। मैं आपको देख भी रही हूँ और आपके साथ कर भी रही हूँ। पेट को अंदर ढकेलना है, सांस को बाहर निकालना है। ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए, चेक करने के लिए होता है हाथ की पोस्चर। बाद में हम लोग आराम से हाथ ऐसे रख के सांस को छोड़ते रहेंगे, पेट को अंदर दबाते रहेंगे। सांस बाहर पेट अंदर, इस क्रिया को कपालभाति कहा जाता है। तो हम लोग अभी सिर्फ 5 बार, आप मेरे साथ कंटिन्यू करते रहिए, मैं आपको देखते देखते बताते भी रहूंगी। चलिए करेंगे। अब ये दोनों भैया जो है तो आपको अंदर जाता है धीरे धीरे, हवा बाहर पेट अंदर। ध्रुव बहुत अच्छे। सिर्फ आपकी जो मूवमेंट है वो यहाँ की कंधों की मूवमेंट थोड़ी कम कीजिए। आराम से बैठ जाइए, सिर्फ सांस को छोड़िए, सीधा बैठ के आराम से। मानवी बहुत अच्छा कर रही हो आप भी। तो इसे कहा जाता है कपालभाति। अब शुरुआत में आप जब नया नया करते हो तो कई लोगों के पेट में थोड़ा सा दर्द होता है, किसी को कमर में दर्द होता है। तो शुरुआत में पहले पहले आपको 8-10 दिन थोड़ा सा दर्द होता है, तो हम धीमे धीमे ऐसे स्ट्रोक लगाते हैं। एक बार अगर पेट अंदर हवा बाहर जाए तो उसे एक स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है, तो अब मेरे साथ 1-2 स्ट्रोक आप लगाइए। चलिए, सिर्फ क्या चेक करना है, नाक से हवा यहाँ पर लगेगी और पेट अंदर दबाना है। ठीक है ना, तो ऐसे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। तो
सेकंड में स्ट्रोक लगा जाता है, तो इसे कपालभाति कहते हैं। तो आइए अब तीसरा इजी प्राणायाम हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। उसे कहा जाता है अनुलोम विलोम। ठीक है, तो हाथ की बीच की 2 उंगलियां, मेरा हाथ आपको बराबर दिख रहा है ना, हाथ की बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा, इसको तीनों को इस तरह मिला लीजिए, जब जैसे छाव में आप हिरन हिरन खेलते हो ना उस तरह से। ठीक है, इस तरह से दबा लेना है। लेफ्ट हाथ को अपने घुटनों पर आराम से रख दीजिए। अब राइट वाला हाथ जो है वही 3 उंगलियां हमें इस तरह एक साथ लानी है। अब अंगूठे से अपनी नाक को बंद कीजिए एक साइड से, दूसरे साइड में जो खुला है उससे हवा को अंदर भरिए। अब उंगलियों वाली साइड से नाक को बंद करना है, अंगूठे को खोलना है और अंगूठे से हवा को छोड़ना है। अब इसे मैं दूसरी पद्धति से समझाती हूँ। अब जिससे हमने छोड़ा था उसी से हवा भरिए, फिर अपोजिट साइड से हवा को छोड़ना है। मुंह बंद रखना है, नाक से हवा को खींचना है, नाक से छोड़ना है। अब देखिए, लेफ्ट से मैंने हवा को भरना है और राइट से छोड़ना है। फिर राइट से भरते हैं और लेफ्ट से छोड़ेंगे धीमे धीमे। एक साइड को बंद करना है, एक को खोलना है। जो खोलोगे उससे हवा भरिए, जो बंद करोगे उससे बाद में छोड़ लेनी है। तो ऐसे क्रिया करते रहिए, धीमे धीमी गति से हवा को अंदर भरिए और धीमे धीमे बाहर छोड़िए। एक साइड से लेना है, दूसरे साइड से छोड़ना है, फिर दूसरे से भरना है और पहले वाली से छोड़ना है। दस बार आराम से इस तरह से कीजिए। एक सांस, अब मैं हाथ से अपनी पोस्चर दिखाती हूँ। सांस भरने की क्रिया ऐसे होगी, सांस छोड़ने की क्रिया ऐसे होगी। ठीक है, तो मेरा एक हाथ तो नाक पे है, दूसरे हाथ से मैं यूज करूंगी सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो चलिए, सांस को धीरे धीरे भरेंगे। अब धीमे धीमे सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब इस साइड से मैंने सांस को छोड़ा है, फिर से इसी से भरूंगी और अपोजिट साइड से छोड़ूंगा। वापस इससे भरेंगे, अपोजिट से छोड़ेंगे, फिर भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरो, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से भरना है और लेफ्ट से छोड़ना है। तो इस क्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग विश्राम करते हैं। विश्राम यानी क्या, आप ध्यान में रखिए। विश्राम यानी आराम से लंबे गहरे 1-2 सांस भरना और 1-2 लंबे गहरे सांस छोड़ना। इसे आसनों में हम लोग विश्राम कहते हैं। जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज, आज हमने थोड़ा सा देखा है, कल और थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे और हर दिन आपको कुछ नए नए लोग आसनों से परिचित कराएंगे। तो 1 घंटे में हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते सीखते 10 दिनों में पूरा पैकेज सीख लेंगे। ठीक है, तो अब आइए समापन की प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद। हम लोग प्रार्थना बोलेंगे, आप सुनिए, कल से हमारे साथ आप भी आराम से बोल सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी निरोगी रहे, इसी कामना के साथ हम लोग विराम लेंगे।
अगले सूत्र व्यास मैडम के हाथ में। Yes, thank you so much, Sarika ji. Yes, I would like to introduce our Vice President, sir, who is energetic, dynamic, and so young. And yes, I would like to request Shardul, sir. नमस्ते. नमस्कार सर. नमस्ते. नमस्ते. जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या वतीनं सर्व पालकांचं, विद्यार्थ्यांचं आणि खास करून डॉक्टर ब्रिजमोहन दायमा सर असतील, डॉक्टर सारिका दायमा मॅडम असतील, या दोन्ही महान पुरुषांचं अत्यंत मनापासून मी संस्थेच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. महान पुरुष याच्याकरिता मी त्या ठिकाणी म्हणतो की अशा पद्धतीची लोकसेवा करणं हे खरोखरच अत्यंत महत्वाचं आहे. कारण योगा म्हणजे सहसा जर आपण विचार केला भारतीय संस्कृतीचा, तर योगाला खूप मोठ्या प्रमाणावरती, आयुर्वेदाला खूप मोठ्या प्रमाणावरती त्या ठिकाणी महत्व आहे. परंतु संस्कृतीचा ऱ्हास हा अत्यंत मोठ्या प्रमाणावरती त्या ठिकाणी होत असल्यामुळं योगा असेल, आयुर्वेद असेल, ह्याला खूप मोठ्या प्रमाणावरती जगभरामध्ये त्या ठिकाणी डॉमिनेट केलं गेलं. आणि ज्या वेळेस पासून योग दिन हा युनोनं त्या ठिकाणी साजरा करायला सुरुवात केली, त्यावेळेस पासून खरं योगाचं महत्व हे संपूर्ण जगाला त्या ठिकाणी समजलं. एवढंच नाही तर जे इस्लामिक कंट्रीज आहेत, ज्या इस्लामिक कंट्रीज मध्ये योगा हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी नव्हता, त्या ठिकाणी सुद्धा अत्यंत मोठ्या प्रमाणावरती योग दिवस हा साजरा करायला सुरुवात झाली. याच्यामध्ये पतंजली योगपीठाचा सुद्धा अत्यंत मोठ्या प्रमाणावरती, माझ्या म्हणण्यानुसार खूप मोठ्या प्रमाणावरती त्या ठिकाणी वाटा आहे. स्वामी रामदेव महाराजांचा खूप मोठ्या प्रमाणावरती त्याच्यामध्ये वाटा आहे. आणि आजचा जो कार्यक्रम आहे, या कार्यक्रमाला खूप मोठ्या प्रमाणावरती अनन्यसाधारण असं महत्व आहे. मला आमच्या मुख्याध्यापिका सौ राखी व्यास मॅडम असतील, दायमा सर असतील, दायमा मॅडम असतील, यांचे अत्यंत मनापासून आभार व्यक्त करू वाटतात की आपण हा जो कार्यक्रम घेताय, हा कार्यक्रम हे जे काही नवीन मुलं आहेत, ज्यांचं वय वर्ष 18 पर्यंत ज्या पद्धतीने या मुलांना आपण घडवणार आहेत, त्याच पद्धतीने ही मुलं त्या ठिकाणी आयुष्यभर त्यांचं पालन, आयुष्यभर त्यांच्या त्या ठिकाणी करणार आहेत. आता जे विचार त्यांना दिले जातील, त्यांच्या शरीराची घडणजडण ज्या पद्धतीने होईल, ते आयुष्यभर त्यांच्यासोबत त्या ठिकाणी राहणार आहेत, जोपर्यंत ह्या पृथ्वी तलावरती त्या ठिकाणी ते असणार आहे. आणि म्हणून ह्या गोष्टी देत असताना ह्या आपण राखी मॅडम असतील आणि तुम्ही दोन्ही दायमा सर मॅडम असतील, यांचं खूप मोठ्या प्रमाणावरती त्याच्यामध्ये महत्व आहे. आणि एवढंच नाही तर या कार्यक्रमाला जरी संख्या कमी असली तरी मी आमच्या बाजूने सुद्धा जे आमचे मुख्याध्यापक असतील, जे काही स्टाफ असेल, टीचिंग असेल, नॉन टीचिंग असेल, या सगळ्या लोकांना ज्या वेळेला इन्क्रीमेंट द्यायचे असतात त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टी पाहणार आहे की ह्या कार्यक्रमांमध्ये अशा पद्धतीने ते किती सहभागी होतात न होतात. परंतु सकाळी 6 वाजता उठून अशा पद्धतीची लोकसेवा मला नाही वाटत दुसरं कोणी व्यक्ती त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये ते करत असेल. आणि ते आपण तिघही अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये करताय. राखी व्यास मॅडमनी ही संकल्पना त्या ठिकाणी संस्थेच्या लक्षामध्ये आणून दिली. ती संकल्पना चांगली असल्यामुळे लगेचच आम्ही त्याला त्या ठिकाणी अप्रुव्हली लगेच आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना त्याच्यामध्ये ते दिलं. आणि या कार्यक्रमामधून मला तुम्हाला तिघांनाही सांगायचं, आणि ही अविरत सेवा दायमा सर आणि मॅडम त्यांची त्या ठिकाणी चालूच राहील. परंतु मला तुम्हाला सांगायचंय की थेंबे थेंबे तळे साचे या कार्यक्रमाला आता जरी युट्यूब वरनं जवळजवळ काहीतरी 20-25 लोक ऑनलाईन आहेत आणि झूम ऍप वरती 60-70च्या आसपास आहेत. म्हणजे तसं जर पाहिलं तर 100च्या आसपास हा आकडा गेलेला आहे. आपली संख्या विद्यार्थ्यांची, शिक्षकांची जरी 25,000पेक्षा जास्त असली तरी सुद्धा ही संख्या 100 लोक जरी असले तरी ती खूप मोठ्या प्रमाणावरती त्याला मायना आहे. कारण स्वामी विवेकानंद नेहमी म्हणायचे, मला माझ्या विचाराची फक्त 10 लोक द्या, मी या संपूर्ण देशाचा चेहरा मोहरा बदलून दाखवेल, असं त्यांचं त्या ठिकाणी म्हणणं होतं. त्याच्यामुळं क्वांटिटीला महत्व नाहीये, क्वालिटीला महत्व आहे. या 100 पोरांमधून 10 पोरं जरी आपण भारतीय संस्कृतीला साजेशी जर बनवली आपण, तरी सुद्धा आपले जेवढे काही कार्यक्रम आपण त्या ठिकाणी घेतो ते कार्यक्रम अत्यंत म्हणजे साजेशी असे होतील. जे संकल्पना आपण घेऊन निघालेलो आहे ती संकल्पना पूर्ण झाली असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. आणि मी तुमचे तिघांचेही मनापासून संस्थेच्या वतीनं आभार आणि अभिनंदन त्या ठिकाणी व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद.
Okay, thank you so much, sir, for joining. I know you are quite busy, but still you joined. Thank you so much, sir. Thank you. Yes. Thank you. And thank you all dear students. I have seen कि आप लोगों ने कितना enjoy किया with the family. Even I have seen that in a congested space as well. 3 to 4 person were doing yoga. So it's a great pleasure to have our Vice President sir, all dear kids and students. Very good. So 9 days to go. 9 days. Also we have to do this same thing. एंड वी हैव सीन सारिका जी ने भी अभी मैसेज किया है कि बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. सो यस, फॉर 9 days वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस मीट. हैव अ नाइस डे. एंजॉय योर संडे. बाय बाय एवरीवन. बाय मैम. थैंक यू सारिका जी. थैंक यू सो मच. Bye, teacher. Bye. बाय बाय Bye, teacher. बाय एवरीवन. बाय Bye, teacher. बाय. बाय बाय. Bye, teacher. Bye. Bye, ma'am. Now you can have your one nap. Okay, take it. Today is Sunday. Hello, Bapra. Yeah. Bye. Bye, ma'am.